Hey people, today we go ahead with the bank PO details, right? And whatever questions you want to ask, you can ask. Before we start the session, let me give you a brief introduction about myself. I've been training and teaching students for various government jobs almost for more than 12 years now. By qualification, I'm a software engineer and I've been into teaching and training industry for some time, right? That's been almost more than 12 years. My main forte of teaching is quantitative ability and data interpretation, right? These are the two areas where I have trained thousands of students in the previous 12 years. I started my teaching career way back in 2008 in Chandigarh, where I was training children for CAT exam. Then the journey continued, and I got an opportunity to train number of students into various government sector exams. That includes IBPS, SSC. In fact, IBPS is a public sector field, and SSC is a government sector field. That's a very small. There is a very thin narrow line between them. In case anyone of you is interested in knowing that, what is the difference between a public sector job and a government sector job, I can certainly give you some idea about that. So I would really be glad to answer your questions in case you have any. Right. First of all, as I'm talking about mainly I'm talking about banking, right? So I'll be limiting myself to banking only. In India, when you talk of bank PO, which is a probationary officer, right? If you see them, then they start as assistant managers, right? They're scale one managers, right? Young dynamic people, they join as assistant managers. And once they start as assistant managers with different banks, right? If you look into the public sector undertakings, PSUs. So in PSUs, mainly there are three exams, I would say. One is the largest exam is IBPS PU, that is conducted for all the nationalized public sector banks, right? Except for SBI, right? SBI conducts its own PO exam, right? And then there is one more very important exam, that is RBI assistant, right? RBI assistant and officer, ये लोग भी जो exam conduct करते हैं, even that is a very reputed exam. अब इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, right? Depending on the student, I have seen they have different parameters for the same thing, right? Some of them are interested in joining a bank जहाँ की आप देखते होंगे बढ़िया सैलरी होती है, they get a good job location as well, so they look into different aspects. अगर मैं इन जनरल पहले एग्जाम्स के बारे में थोड़ी सी बात करूं, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, as I believe most of you who are watching, they are aspiring to get into the bank job and you are the ones who want to become officer in different banks, right? प्राइवेट सेक्टर के भी ऐसी बैंक्स होते हैं, उनके भी एंट्रेंस प्रोसेस होते हैं, आईसीआईसी भी अपना एग्जाम कंडक्ट करती है, राइट? इनफैक्ट दे conduct a different kind of program for PO. They conduct a written exam and then they take you for a PGDBM, right? PGDBM is postgraduate diploma in banking and management. तो वो मणिपाल यूनिवर्सिटी से उनका टाई अप है, पहले वहां से कराते हैं और फिर then finally they absorb you. That's the process that they adopt, especially the ICICI. If I talk of the largest exam of PO, that is IBPS PO, right? अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है, अदरवाइज अभी जुलाई में ही उसका प्री शेड्यूल था और अगस्त में मेंस एग्जाम होना था. Banking sector is one such sector, children, right? I won't say children as most of you might be very grown-ups, right? But I'm sure you must not be more than 30, as the eligibility, the age criteria is from 21 to 30 for PO exams mostly. हालांकि बैंक टू बैंक slight variation भी है 1-2 साल का, but yes, mostly it is from 21 till 30. There is a relaxation for OBC for 3 years, for SC/ST for 5 years. Then you have to be a graduate
एजुकेशनल एलिजिबिलिटी इज व्हाट, यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन फिनिश कर रखी है या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द सेम। ओके, देन एग्जाम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो पीओ के एग्जाम जनरली आप देखेंगे 3 फेजेस में होते हैं। फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी फेज, then comes your mains phase, and then is the final phase, which we generally say as GDNPI, right? Group discussion and personal interview phase. Preliminary phase tests you on 3 skills: quantitative ability, reasoning ability, and verbal ability. In all, you have 100 questions. In, if I break them, then it is like you have 35 questions of quant, 35 questions of reasoning, and 30 questions of English. For each section, there is a sectional timing as well. The sectional timing is 20 minutes per section. But yes, there is no sectional cutoff. The good thing is आपको कोई sectional cutoff नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी overall cutoff clear है, पहले ऐसा होता था कि आपके अलग अलग sections में भी आपकी cutoff clear होनी चाहिए थी। But अभी जो current अभी scene चल रहा है, they keep changing the norms. But अभी जो current norm है उसमें कोई sectional timing preliminary में नहीं है, ठीक है? So if you have cleared the overall cutoff, you advance to the next stage. That is the main stage. मेंस में क्या होता है? प्रिलिमिनरी आपका 1 आवर का टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। मेंस में इट इज अ 3 आवर टेस्ट जिसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं: डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर्स, वर्बल एबिलिटी, राइट? और उसमें 2 फेजेस हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है। 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, 200 मार्क्स इन 3 आवर्स, and then on the same day you are also supposed to appear in the descriptive test, which is of 30 minutes and 50 marks. Descriptive test is mainly a test of language where you are supposed to write an essay, or might be you are supposed to write an letter, depending, अलग अलग कंडीशंस होती हैं जो भी वहां पे उन्होंने दे रखा है। कभी लेटर राइटिंग, कभी प्रेसी राइटिंग, कभी ऐसे राइटिंग, इस तरह की चीजें पूछी जाती रही हैं इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। If you clear the second phase, you advance to the third phase, which is the GDNPI. Mostly I have seen SBI में ग्रुप डिस्कशन कंपल्सरीली होती है, दूसरे बैंक्स में GD की जगह पे वो दूसरे और भी उनके मीन्स हैं where they check your personality, right? So personality test मैं इसको कह सकता हूँ। GD हर बैंक में नहीं होती है, बट हाँ SBI में you will face GD। दूसरे बैंक्स में पर्सनालिटी टेस्ट के और भी तरीके होते हैं। They can give you a group task, right? Interview is something that is a mandatory thing for any officer job, for any PO job, probationary officer job. Interview is a mandatory thing that you are going to face. If you have seen that, right? I mean, if you have seen all these 3 phases, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं आपको बताऊं, 2 phases ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी वेटेज आपके सिलेक्शन में मैटर करती है, and those 2 phases are the last 2 phases. प्रिलिमिनरी का जो वेटेज है, जो आपने मार्क्स स्कोर किया है, वो फाइनल सिलेक्शन में उसका कोई काउंट नहीं होता, राइट? मेंस एंड द जीडीपीआई, राइट? जो आपने मेंस पेपर दिया है ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, उसकी वेटेज होती है, प्लस जो आपने जीडीपीआई की परफॉर्मेंस की है उसकी वेटेज होती है इन द फाइनल सिलेक्शन। ओके, once you are in the bank, right, you have joined as a skill 1 officer, as a probationary officer, तो पहले आपको बैंक जनरली एक ट्रेनिंग के लिए भेजती है। डिपेंडिंग ऑन द बैंक, मैक्सिमम 2 इयर्स तक का प्रोबेशन होता है। एज अ ऑफिसर जब आप ज्वाइन करते हैं आपके पास 2 इयर्स का प्रोबेशन होता है जिसमें आपको बैंक रिक्रूट करती है। किसी बैंक में 1 ईयर का भी है, बट हाँ जनरली मैंने देखा है मैक्सिमम जो पीएसयूज हैं वहां पे आपके पास है 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है फॉर ऑफिसर्स, राइट? सो वंस यू कंप्लीट, पहले तो आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद फिर आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने का आपका 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होगा, एंड देन फाइनली यू आर ऑन रोल्स। जनरली जितने भी बच्चे ज्वाइन करते हैं मैंने देखा है कि उनमें से 99% तो ऑन रोल्स हो ही जाते हैं। हाँ 1% अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम रही हो तभी वो प्रोबेशन के बाद कंटिन्यू नहीं करते, बट हाँ मोस्ट ऑफ देम दे कंटिन्यू। सो इफ यू लुक इनटू दैट, अगर आप इन चीजों पे ध्यान देख रहे हैं कि जब आपने ज्वाइन किया है तो अब एक बैंक ऑफिसर की जॉब कैसी होती है, दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट माइट स्ट्राइक योर माइंड। सो आई वुड से
बैंक ऑफिसर की जॉब बहुत ही बढ़िया होती है, राइट। इनफैक्ट कई बार कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये एक क्वेश्चन होता है, हालांकि आपने पूछा नहीं है, बट स्टिल दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली टू मी एज अ टीचर, दैट सर एसएससी सीजीएल की जॉब अच्छी है या बैंक की जॉब अच्छी है। तो मैं इसका जवाब कुछ इस तरीके से देता हूँ, राइट। माइट भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो, बट हाँ जानना जरूरी है बिकॉज अक्सर इन दोनों जॉब्स को कंपेयर किया जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है, 12 साल से कई सारे ऑफिसर्स, कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मैंने हेल्प की है वहां तक पहुंचने में, और आज वो अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने देखा है जो भी लोग एसएससी सीजीएल क्रैक करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हैं, एक्साइज में जा रहे हैं, या फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन रहे हैं, उनकी जॉब लाइफ थोड़ी ज्यादा रिलैक्स्ड होती है। उनकी पेमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बेसिक पेमेंट इज ऑलमोस्ट सेम, लेकिन हाँ जॉब लाइफ ज्यादा रिलैक्स्ड है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बैंक को देखेंगे तो बैंक में आप पे वर्क प्रेशर ज्यादा होता है, राइट। दैट आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू टू ज्वाइन बैंक, बिकॉज बैंक इज द ओनली सेक्टर जिसकी वैकेंसी आनी तय होती है, वो बिल्कुल टाइमली आती है, टाइमली वैकेंसी आती है, टाइमली एग्जाम्स होते हैं, टाइमली अपॉइंटमेंट्स होती हैं। देयर इज नो अदर गवर्नमेंट और पीएसयू सेक्टर which is as you know regular as the bank job is. बैंक जॉब्स में आप ये देखेंगे बहुत टाइमली वो लोग हर साल समय से एग्जाम कराते हैं, समय से प्री, समय से मेन, समय से इंटरव्यू, एंड देन समय से अपॉइंटमेंट भी देते हैं। that happens only in bank. If you look at the other side, एसएससी जिसकी जॉब काफी रिलैक्स्ड है in comparison to बैंक, आप वहां पे इस बात को देखेंगे दैट वहां पे पहले या तो कभी रिजल्ट नहीं आया, या फिर कभी एग्जाम ही कैंसिल हो गया, कभी मामला हाई कोर्ट में है, कभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो पिछले 2-3 साल से तो एसएससी में काफी इरेगुलरिटीज आई हैं। आई डोंट से दैट एसएससी इज अ बैड एग्जाम, तो सडनली इट हैज बीन अ प्रेस्टिजियस एग्जाम, बट यस पिछले 2-3 साल से काफी इरेगुलरिटीज एसएससी के एग्जाम में आई हैं, ठीक है। तो सर्टेनली अगर आप कुछ इनिशियली आप किसी अच्छे जॉब में जाना चाहते हैं तो बैंक स्टैंड्स अ बेटर चांस देन एसएससी बिकॉज ऑफ द प्रॉमिसिंग थिंग, राइट, दे हैव ऑलवेज मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। हालांकि अब एसएससी का एग्जाम भी अब वही गवर्निंग बॉडी करवा रही है जो बैंक का एग्जाम कराती रही है, उन्होंने भी अपना एग्जाम कंडक्टिंग जो बॉडी थी वो चेंज कर दी है, तो अब इवन दैट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द सेम टीसीएस पीपल आर कंडक्टिंग दीज एग्जाम्स। तो वी एक्सपेक्ट कि अब जो एसएससी एग्जाम्स होंगे वहां पे भी रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेट मी get back to the topic of PO, right? As in this session, mainly I should be talking about PO. Although you can ask anything about any government exam, right? I think I'll be able to guide you to some extent, if not completely. At least I'll give you some idea that will take you through to the next step. So, बैंक पीओ जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, एज अ बैंक पीओ जब आप ज्वाइन करते हैं, तो इनिशियली अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी आपकी एवरेज सैलरी अगेन बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। बेसिक सैलरी अराउंड 24,000 से लेकर के 28,000 तक होती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बैंक्स। देन देयर आर सम अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस, एचआरए अलग, डबल ट्रिपल सीए, राइट, सीसीए अलाउंस, इस तरह के अलाउंसेस होते हैं। इन सबको मिला करके ऑन एन एवरेज 40,000 के आसपास की सैलरी तो होती है। अगेन ये जो अलाउंसेस हैं वो सिटी टू सिटी वेरी करते हैं। अगर आप किसी टीयर 3 या टीयर 2 सिटी में हैं तो आपके अलाउंसेस कम होते हैं, अगर आप किसी टीयर 1 सिटी में हैं तो आपके वहाँ अलाउंसेस ज्यादा होते हैं, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अलाउंसेस। दैट इज बेस्ड ऑन द standard of living and the cost of living that is there in that particular city, right? Let's say if you are staying in Mumbai, the allowances would be much higher than what you are getting in a city like Lucknow, or might be in a city like Bareilly, right? If you are staying in Guwahati, the allowances might be low if you compare it to might be New Delhi, and if you compare to Mumbai with respect to New Delhi, you will find that the allowances are much higher in Mumbai, ठीक है। तो बेसिक पेमेंट हर शहर में बराबर है, बट अलाउंसेस डिफर करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि टीयर 1 टीयर 2 सिटी में ऑन एन एवरेज एक पीओ की जो सैलरी होती है दैट इज समवेयर क्लोज टू 40,000 जो ओवरऑल उसके पॉकेट में आती है। अगर आप किसी टीयर 1 सिटी में जाते हैं तो वहां पे यही चीज
that exceeds 70,000, वहां पे जो उसकी मंथली सैलरी होती है वो 70,000 प्लस होती है, बट हाँ अकॉर्डिंगली उसी रेशियो में उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं ना, राइट? the in the same proportion the expenses also increases. Okay, so if I talk about the kind of job that they face, right, what is the kind of training? So initially what I have seen, right, जो students मेरे आज officers हैं वो बताते हैं, बहुत सारे students हैं जो कि अब तो बहुत सारे ऐसे भी हैं who have got married and they have moved up in the scale. They joined as scale 1 officer, they moved on to scale 2, scale 3, scale 4, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं ग्रेजुअली। जो फर्स्ट प्रमोशन होती है मैंने जो देखा है अपने स्टूडेंट्स को, 3 to 5 years में पहली प्रमोशन हो जाती है, यानी आप स्केल 1 ऑफिसर से स्केल 2 ऑफिसर बन जाते हैं। स्केल 1 यू कैन से इज असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 2 इज अ डिप्टी मैनेजर, एंड देन स्केल 3 इज अ मैनेजर। ठीक है, दैट इज द आई मीन लेडर ऑफ सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। देन कम स्केल 4, राइट, जहां आप फर्दर और अपग्रेड करते हैं, आपका एजीएम होता है, जीएम होता है, राइट, इस तरीके से यू कीप इंक्रीजिंग, राइट, दैट इज हाउ यू improve and you grow in your later. So आपकी जो ट्रेनिंग होती है बच्चों, इनिशियली वो आपकी जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है, उसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको फाइनेंस, आपको बेसिक जो फंक्शनैलिटी होती है बैंकिंग की, उन सब जगह पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और दैट टू ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हर चीज आपसे करवाया जाएगा, सिर्फ सिखाया नहीं जाएगा, सिखाने के साथ साथ आपसे हर चीज करवाया जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि 2 साल के प्रोबेशन के बाद आप एक्चुअली में हर उस चीज को करने के लिए कैपेबल हैं जो क्लाइंट आपके पास लेकर के आ रहा है। क्लाइंट मतलब आपका कस्टमर, राइट? अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाइंट की। हाँ भाई, कभी कोई चार्जेस एक्स्ट्रा कट गए तो उसको भी आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, राइट? एज यू मूव ऑन 3 से 4 साल 5 साल के बाद, जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में पूरी तरीके से एक्लेमेटाइज हो चुके हैं, उस टाइम पे यू विल फाइंड दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो ग्रो एंड दे चेंजेस, राइट? हर चीज में ऐसा ही होता है, बैंकिंग इज नो डिफरेंट। यहाँ पे भी जैसे जैसे आप आगे ग्रो करते हैं, अपना एक्सपीरियंस आपका इंक्रीज होता जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती जाती है, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आप बढ़ते हैं, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू यू। सो दैट इज मेनली यू विल से कि फिर आपको प्लानिंग में लेके आते हैं, बजटिंग में लेके आते हैं, राइट? फिर किस तरीके से बैंक की प्लानिंग होती है, बजटिंग होती है, राइट? मार्केटिंग कैसे करनी है, हर छोटी छोटी चीजें आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करते चले जाते हैं। ठीक है, सो if you have any questions children, I would really appreciate if you have any questions, and if I can help you with those questions, please go ahead with the questions, right? In case you have any questions, any specific questions, right, you can go ahead with the questions. बैंकिंग जॉब को लेकर के, कोई भी पब्लिक सेक्टर जॉब को लेकर के या गवर्नमेंट सेक्टर जॉब को लेकर के, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। इट्स योर टर्न नाउ। I cannot read any comment as of now, right? So I hope all of you are aspiring to get into a good job, right? And as a टीचर मैं फाइनली फिर सिर्फ इतना ही टिप देना चाहूंगा, बैंकिंग जॉब या कोई भी जो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब है जहां आप पहुंचने की चाहत रखते हैं, ध्यान रखिएगा उस केस में आप वहां तक सिर्फ और सिर्फ तभी पहुंचते हैं when you know it is not a real test of knowledge, it is a test of speed and accuracy. बेसिक नॉलेज अगर तुम्हारे पास अच्छी है और तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है, तुम गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब को क्लियर कर दोगे, राइट? टेस्ट ऑफ नॉलेज से क्या मतलब है? तुम्हें बहुत ज्यादा हाई फाई मैथमेटिक्स, हाई फाई इंग्लिश या फिर बहुत ज्यादा हाई फाई रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, राइट? लेकिन हाँ, उसमें थोड़ी सी गाइडेंस जरूरत पड़ती है। जैसे ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करके इन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, राइट? आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन क्लियर ऑल दिस एग्जाम्स बाय डूइंग सेल्फ स्टडी ओनली। बट हाँ, सेल्फ स्टडी के साथ साथ अगर आपको कोई ऐसा अच्छा टीचर मिल जाता है, अच्छी इंस्टीट्यूट मिल जाती है जो आपको इन चीजों पे गाइड कर रही है, तो सर्टेनली द पाथ बिकम्स मच इजियर।
मतलब आप जिस चैप्टर को 10 बुक से पढ़ोगे या फिर किसी एक अच्छी बुक से पढ़ोगे, आपके पास एक ऐसा मेंटोर है जो पिछले 10 साल से, 8 साल से, 12 साल से उसी चीज को पढ़ा रहा है, राइट? तो सर्टेनली उसने 20 किताबें पढ़ रखी हैं, वो उन 20 किताबों का जो जिस्ट है, जो समरी है, जो बेस्ट पॉइंट्स है, वो आपके सामने रखेगा। तो सर्टेनली दैट वुड बी मच इजियर फॉर यू। जिस चीज को आप 10 घंटे में पढ़ेंगे, वो चीज हो सकता है आपको 1.5 से 2 घंटे में वो बहुत अच्छे तरीके से समझा देगा, राइट? एग्जाम में किसकी क्या वेटेज है, उसको इन चीजों की समझ है। आई मीन दैट इज वेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ गुड कोच, अ गुड ट्रेनर कम्स इन, राइट? सो कहीं ना कहीं एक अच्छे कोच की, एक अच्छे इंस्टीट्यूट की, एक अच्छे टीचर की जरूरत तो सबको पड़ती है। अगर वो हो जाता है तो रास्ता आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मंजिल तक हम खुद से नहीं पहुंच सकते, बट हाँ, उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता काफी फास्ट और काफी आसान हो जाता है अगर आपके साथ कोई अच्छा कोच और कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आपके साथ है जो आपको गाइड कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है। So that is where we step in, right? We at National Banking Academy, we are based in different cities of UP and Uttarakhand, and we have been training for these exams since 2010. 2010 में हम लोगों ने स्टार्ट करी थी ये ट्रेनिंग। मैं हालांकि टीचिंग मैंने 2008 से शुरू की थी, बट हाँ 2010 से हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। एंड since then we have successfully trained thousands of officers into different banks and different government departments, right? Ministry of External Affairs में भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए आज हैं, एम्बेसीज में भी हैं, राइट? तो अच्छा लगता है, राइट? आप कभी किसी डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ पे एकदम से अंदर से कोई निकल के आ जाए और आपको नमस्ते करे, तो आपको लगता है कि हाँ चलो भाई, तुमने जो काम किया है दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। सो in case any one of you is needing any kind of guidance after today's session, right, you can always get in touch with me, right? We have a Facebook page by the, आप यहाँ पे जो रिवर्बा करियर है, आप यहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दैट यू नीड टू, यू कैन टैग मी ऋषि देव, राइट? यू कैन टैग मी इन द क्वेश्चन and I would certainly be happy to help you out. uh, we also have a page that is called NBA NBA या फिर प्रेप मास्टर्स, PREP MASTERS, राइट? प्रेप मास्टर्स के नाम से ही हमारी वेबसाइट भी है, हमारा पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है। तो आपको, आप हमारे कुछ कंटेंट को फ्री एक्सेस कर सकते हैं ऑन द यूट्यूब चैनल, राइट? उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे दैट यू हैव डिफरेंट प्लेलिस्ट। हम लोगों ने एग्जाम स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, right? For IIT JEE, for NDA, for SSC, for Bank PO, for पुलिस, फॉर लेखपाल, फॉर स्टेट लेवल एग्जाम, सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बने हैं। तो बिकॉज स्टूडेंट्स को हम नहीं चाहते कि उनको थोड़ी भी परेशानी हो, तो हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि आप जिस एग्जाम पे भी फोकस कर रहे हैं, आप हमारे चैनल प्रेप मास्टर्स, prep comes from the preparation and masters is preparation masters, so the channel is what? Prep Masters, PREP MASTERS, prep masters। आप वहाँ प्रेप मास्टर्स में जाएंगे और वहाँ अपने जो आपका एग्जाम पे फोकस है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के अपने वीडियोस देख सकते हैं। ऑलमोस्ट यू विल फाइंड कि हर वीडियो में हर प्लेलिस्ट में एटलीस्ट 50 to 100 वीडियोस तो होंगे। अगर आप वहां से देखना शुरू करें, वहाँ पे आप, अगर आपको किसी और टॉपिक में परेशानी है, आप वहाँ कमेंट करके बताएं, राइट? आई कीप अ वेरी क्लोज चेक ऑन द कमेंट्स एंड आई ट्राई एंड वर्क ऑन द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। बच्चे अगर कोई भी टॉपिक बोलते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ वहाँ पे उस वीडियो को मैं अवेलेबल कराऊँ एट द अर्लीस्ट। So in case you have any doubt, anything, try and get connected, right? My personal pages are there on Twitter, on Instagram, on Facebook, everywhere, right? You can search me by the name of Maths by Engineer Rishidev. There's no gap. MATHS, Maths by BY Engineer ER Rishidev, ठीक है? तो वो मेरा पर्सनल सब जगह पे हैंडल है। एंड देन आपको कभी भी कोई भी परेशानी आती है, स्पेशली इन ऐसे तो कोई भी परेशानी होगी, देयर इज अ टीम ऑफ टीचर्स हु कैन हेल्प यू आउट। बट यस, अगर मैथ्स में कोई भी परेशानी है, डेटा इंटरप्रेशन में कोई परेशानी है, यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद मी, राइट? आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। एंड आई जस्ट होप कि आने वाले टाइम में आप सब लोग अच्छे जॉब में जाएं। कोरोना की वजह से बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशन को हल्की मत होने देना, राइट? The smart students, the intelligent ones, they are working very hard, right? मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे, ऑल्दो फिजिकल क्लासेस ऑफ हैं, आपको पता है ऑलमोस्ट मार्च स्टार्टिंग से ही ऑफ है,
हालांकि मार्च लास्ट वीक में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, बट उससे पहले होली वगैरह थी, तो ऑलमोस्ट मार्च से ही पूरी सारी फिजिकल क्लासेस देयर ऑफ, and we have been trying to help the students through virtual medium. We have been conducting live classes, right, on different platforms. तो आपको भी कहीं पे भी कुछ भी अगर परेशानी हो, you can always let us know and we'll be more than happy to help you out. So I would like to extend thanks to Sohail sir, who has given me this opportunity to come and interact with you. I hope this session would be beneficial to all of you, right? You could have benefited by, you could have got some information out of this. In case you need any more assistance or any more, kind of specific knowledge about some topic, you can just let us know either to Sohail sir or to me. So I'll keep it short, right? It's almost 10:30 now, and thank you. Wish you all the best. जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी बना के रखो, टेस्ट सीरीज जरूर से करो, टेस्ट सीरीज को एनालाइज करो, राइट? ये देखो कि किस सेक्शंस में तुम्हें परेशानी हो रही है। मैंने देखा है अक्सर बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी की मैथ्स अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है। रीजनिंग इज मैंडेटरी की सबको अच्छी करनी ही होती है, अच्छी है तो अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं है तो अच्छी करो। रीजनिंग में कोई चॉइस नहीं है। लेकिन हाँ, मैथ्स और इंग्लिश में मैंने अक्सर देखा है ऐसा बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है जिस जिस बच्चे की मैथ्स और इंग्लिश दोनों ही अच्छी है। तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, बट हाँ तुम्हें उसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज एट दी एंड कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि मेंस में फिर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी लिखनी है, ठीक है? तो इसलिए आप रीडिंग हैबिट डेवलप करें और प्रैक्टिस कीजिए, राइट? जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना अच्छा है। अगर आपने एक बार प्रिपरेशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, किसी अच्छे टीचर के अंडर कर रखी है, तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड अपियरिंग इन द मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट में रेगुलरली अपियर हो रहे हैं, believe me, thing will certainly going to click for you. They are going to click for you, right? So I'll sign off here, right? Hope to see you in good jobs in the time to come. Wish you all the best, children. Bye bye. Take care. God bless.